Very good afternoon and namaskar, friends. I welcome you to my next video lecture. And friends, in this series of English language and literature, I am in front of you with the next and one of the greatest Anglo-Saxon epic poem called Beowulf. Friends, it is an anonymous poem, means its author is not known. In the brief introduction of the poem, Beowulf is one of the earliest and greatest epic and heroic epic poem of Old English, or which we call Anglo-Saxon English origin. It is a masterpiece of literature that recounts the heroic exploits of its titular protagonist. It is one of the longest poems in the English literature, consisting of 3182 lines, 3180 lines. So friends, this question is to be noted that this poem has 3182 lines. The question can be asked in your UGC net or any state set exams. It is one of the most important works of Old English literature produced between 975 and 1025. So friends, Beowulf is the one of the greatest epic or heroic poem in English literature. It is the longest and greatest surviving poem of the Anglo-Saxon period. Friends, now we will talk about its setting. The setting of the poem is in the early 6th century in Scandinavia and now known as Denmark and South Sweden. Once again, friends, the setting of the poem, the timing of the setting of the poem is the 6th century, and the place or area is Scandinavia and which we know call Denmark and South Sweden. It tells the story of Beowulf and his battles against Grendel, Grendel's mother, and an unnamed dragon, or which we call the fire dragon. Beowulf is one of the greatest heroes of this poem. It is one of the oldest surviving works of Anglo-Saxon literature. Friends, Anglo-Saxon literature, which we also call the Old English. तो ओल्ड इंग्लिश एंड और एंग्लो सैक्सन पीरियड का सबसे ग्रेट इपिक जो है, सबसे बेस्ट और only one of the best known literary works is Beowulf, and which provides valuable insights into the culture and values of early medieval England. Friends, now we will talk about its main characters to make it easy to understand this the story of the poem. Friends, the main characters in this poem are, first of all, we have Beowulf, next King Harthnger, third Grendel. Grendel, who is Grendel? Grendel कौन एक demon है who attacks the Danes. First of all, Beowulf जो है, Beowulf ये protagonist है of the epic poem. King Harthnger, king of Spear Danes है. Spear Danes is a country. Grendel एक demon है, एक शैतान है, who attacks the Danes. Grendel's mother उसकी शक्ल जो है a half human creature है, a monster who attacks the Danes out of revenge for her son's defeat and death. Because
ब्यूल्फ ग्रेंडल को मार लेता है, उस पर सक्सेस कर लेता है, उसको मार देता है। तो उसका रिवेंज के लिए ब्यूल्फ की मदर वहां पे अटैक कर लेती है इस पे आने। द ड्रैगन, फिफ्थ कैरेक्टर, द ड्रैगन और विच वी आल्सो कॉल द फायर ड्रैगन। Beowulf's third fight with dragon constitutes the final part of the epic poem. Will Theo, Will Theo, Herthoger's Herthoger's wife का नाम क्या है? Will Theo, Herthoger's wife and a gracious queen of Danes. ये gracious queen है डेन्स की, क्योंकि हर्थोगर की वाइफ है। Wiglaf, the Wiglaf is stout companion of Beowulf. Beowulf का काफी एक वफादार और strong companion साथी होता है, who comes to aid Beowulf in his fight against fire dragon. So friends, these were the some characters. Now we will discuss the detailed summary of the poem Beowulf, or the detailed story of the poem. Going through this poem, the story of Beowulf starts with a prologue that tells the story of a famous sailed shipping. Sailed shipping is the name of a person, actually an orphan, who becomes a successful king of the Spear Danes. In its story, when the Danes were the kingless, when the people of Dane, they were kingless, they were having no king, a ship entered sailing into their harbor. What happens? A ship entered sailing into their harbor. The ship was loaded with treasures. In the midst of these warlike things, there was a baby sleeping in that boat. When sail grew up, he emerges as a mighty warrior. He takes over as the king of the Spear Danes. He becomes the king. So he takes the control of king Spear Danes and become their king. After his death, Harthager, who was a descendant of Sailed, takes over as king of the Danes. So he becomes the king. Harthager, after the death of Sailed, because of a descendant of Sailed, Harthager, he takes over the charge of king. He becomes the king of Danes. For the amusement of the people, he built a mead hall. For the amusement of the people, he built a mead hall which they called Herod. So friends, this also comes a question कि what is the name of the mead hall? Mead hall का नाम क्या है? Herod है. And why Harthager built it? It was built for amusement of the people of Danes, people of his country. So the poem opens with the introduction of the Danish king Harthager, whose magnificent mead hall, Herod, which is known as Herod, is plagued by the monstrous creature grendel. एक monstrous creature है जिसका नाम ग्रेंडल है, वो उसने तबाही यहाँ पे मचा के रखी हुई है, इसके मीड हॉल पे अटैक करता, हमला करता है. He was greatly annoyed by this music, dance like things, and so attack the mead hall and kill and eat the people enjoying in the mead hall. वो उन लोगों को मारता है, किल करता है, खाता, क्योंकि वो तो एक मॉन्स्टर है. तो इस तरह से बहुत ही एक हलचल मची हुई है इस यहाँ पे. The night after night, Grendel terrorizes the Danes. हर एक रात जब आती है तो पूरा एक खौफ वहां पे छाया हुआ है पूरे डेन्स में. स्लॉटरिंग हार्थगर्स वॉरियर्स, उसके वॉरियर्स को स्लॉट करता है, काट देता है उनको. एंड लिविंग द हॉल डेसोलेट फॉर 12 years long. 12 साल तक वहां पे बिल्कुल एक साइलेंस छाई रहती है. द सिचुएशन बिकम्स डायर एंड हर्थागर्स किंगडम इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स. उसका इतना हालात खराब हो जाते हैं वहां पे डेन्स में इस ग्रेंडल की वजह से कि इसकी पूरी राजधानी जो है लटकड़ा खड़का जाती है. और
The news of and what happens? The news of this frightful situation created by the grendel passed over the sea and reached in Geat land and land of the Geats. गीट्स की जो लैंड है वहां पे वो उन लोगों तक ये खबर पहुंच जाती है एंड फॉर देयर गुड फॉर्चून इट रीच टू बीओल्फ। उनकी अच्छी किस्मत होने की वजह से ये न्यूज जो है, जो डेन्स में हालात इतने टेररिज्म छाया हुआ वहां पे टेरिफाइड जो पीपल हैं बिकॉज ऑफ ग्रेंडल, तो फॉर्चुनेटली उनकी किस्मत से द न्यूज रीचेस टू द बीओल्फ actually strong and who is Beowulf actually is a strong young hero who was nourished and dwelt in the house of his uncle। वो अपने अंकल के घर में रहता है और वहां पे उसकी पालन पोषण होता है। तो एक डेन्स के पीपल के लिए, किंग हर्थागर के लिए, उसके लोगों के लिए एक अच्छी किस्मत की बात यह थी कि बीउल्फ को ये खबर पहुंच जाती है एंड बीउल्फ इज ए स्ट्रांग पर्सन, ही इज ए ग्रेट वॉरियर। तो व्हाट हैपेंस? एंटर बीउल्फ, ए गीटिश वॉरियर ऑफ द अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ है उसकी, उसके मुकाबले के कोई नहीं है। एंड करेज, hearing of Hrothgar's plight, Beowulf set sail for Denmark with a band of 14 loyal warrior companions। What happens? Beowulf वो अपने 14 staunch warriors को, faithful and strong companions को, warriors companions को साथ में लेके अपना वाह्य शुरू कर लेता है एंड सेट्स फॉर डेनमार्क के लिए निकलते हैं। Upon their arrival, the king's herald उल्फगार, अब किंग का एक अच्छा खासा को वहां पे जो आदमी है जो आपकी देख रेख करता है, उसका वफादार है, तो उसका नाम क्या है? उल्फगार है, WLFGR उल्फगार है। He strongly recommends the king to meet Beowulf। हालांकि जब वहां पे पहुंचते हैं ये Beowulf with his fellows 14 warrior fellows वहां पे पहुंचता है, तो व्हाट हैपन? जो ही वो मीड हाल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल ऑफ गार्डिंग दैट पार्ट, दैट मीड हॉल, he asks him his identity and जब ब्यूल्फ रिवील कर लेता है, ब्यूल्फ रिवील्स दैट he had come for this aim and he wanted to meet Arthur the king of Danes। तो इसी में क्या होता है कि उल्फगार जो वो भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता है बादशाह से, अपने बादशाह हर्थागर को कहता है कि आपको जल्द से जल्द मिलना चाहिए ब्यूल्फ से एंड हिज फेलो गीट्स, और उसके फेलो जो गीट के जो लोग यहाँ पे आए हैं उनसे मिलना चाहिए। वेयर ब्यूल्फ बोल्डली डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन, अब बुरी बहादुरी के साथ अपनी इंटेंशन, जो उसकी सोच जो है, जिस मकसद के से वो आया है, वो बोल्डली यहाँ पे एक्सप्रेस कर देता है किस किंग के साथ? डेन किंग हर्थागर के साथ, उसके पीपल के साथ। और इंटेंशन क्या थी? टू रिड हेरोट ऑफ ग्रेंडल एंड रिस्टोर पीस टू द लैंड। उसने कहा कि मैं चाहता हूं, आई हैव द इंटेंशन कि आपके पीपल के बाद जो भी टेररिज्म यहाँ पे छाया हुआ है, जो टेरिफाइड पीपल हैं बिकॉज ऑफ ग्रेंडल, तो मैं चाहता हूं कि आप ग्रेंडल से आप लोगों को मुक्ति दूं, छुटकारा दूं, और आपका जो हेरोट जो है उसको मैं छुटकारा पाऊं उससे। Hrothgar, impressed by Beowulf's confidence, welcomes him and his men with open arms। वो काफी उनको स्वागत उनका करते हैं, बहुत ही खुले दिल से उनको स्वागत करते हैं Beowulf और उसके आदमियों का। The Dane king and his people were happy for Beowulf's offer of support। The Dane king Hrothgar was also aware that Beowulf possesses the strength of 30 men in him। वो ये भी जानता है, किंग हर्थागर जो है उसको ये भी पता, बिकॉज उसने सुना होता है बचपन में, क्योंकि ब्यूल्फ के फादर जो होते हैं वो हर्थागर के दोस्त रहे होते हैं किसी टाइम पे। द किंग हर्थागर वाज आल्सो नोन अबाउट ब्यूल्फ्स फादर इक्थोस ECGTHEW, इक्थौ ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। और किंग हर्थागर जो है सिर्फ ना ये ब्यूल्फ के फादर के बारे में भी जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, वो कितने बहादुर थे, कितने ब्रेव थे। He had also heard of Beowulf when Beowulf was a boy, of his unusual strength and greatness। उसकी unusual
ना मुकाबला करने वाली कोई इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। इसकी ग्रेटनेस, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, ब्यूल के बारे में जानते थे हर्थागर, किंग हर्थागर। एंड सो ही वाज मच कॉन्फिडेंट ऑफ ब्यूल्फ दैट ही इज मच ब्रेव एंड अनयूजुअल वॉरियर। सो इसी तरह से इनको कॉन्फिडेंस था कि एक आम आदमी नहीं है, एक आम वॉरियर नहीं है, बल्कि ही इज एन अनयूजुअल, एक यूनिक वॉरियर है। एंड that he is much brave and unusual warrior to confront Grendel. कॉन्फ्रंट कर सकता ग्रेंडल को। एंड ऑल्सो दैट ओनली Beowulf could save Danes and its people from the clutches of the Grendel. So he also requests Beowulf to help him in restoring security and peace to his people of Danes. इस तरह से अर्थात उसको रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो so the request was accepted, and what happens now? Beowulf starts his action. Means there happen two main battles there in Danes, and last one is the battle with Fire Dragon that happened in his own country, back in his home country. So let's go into detail with these battles. The start of the battles, the first battle, पहली जो बैटल होती है कब होती है? Because Beowulf, he has arrived there with his ambition, with his intention to get the people rid of the Grendel's terror. So what happened on that night, as Beowulf and his comrades lie in wait, वो wait कर रहे थे कि कब वो आए, Grendel descends upon Harrod once more. What happens? Grendel फिर से उस रात को भी Harrod में एंट्री कर लेता है। In a fierce battle that ensues, Beowulf grapples with the monstrous fiend or devil when even the buildings quake. What happened? जो ही ग्रेंडल वहां पे आता है, Beowulf उस पे अटैक कर लेता, हमला कर लेता, ग्रैपल कर लेता उस पे, और इतना शिद्दत से, इतने स्ट्रेंथ, इतने स्ट्रांग इट वाज, द अटैक वाज so much strong, the battle was much strong that even the building quakes. वहां की पूरी बिल्डिंग जो है वो क्वैक करने लगती है, थरथराने लगती है। Beowulf was well as Grendel's companions fight in their commander's sport. So what happens? Two people, they are fighting, Beowulf and Grendel are fighting, and in their sport, their companions also are fighting with each other to support their, अपने कमांडर्स की स्पोर्ट में वो भी फाइट कर रहे हैं विथ स्वर्ड्स एंड बैटल एक्सेस। अब किससे? जो उनके पास सवार से तलवारें हैं, या फिर जो कुल्हाड़े वगैरह उनके पास जो भी हैं, जो चीजें उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग, दे आर अटैकिंग ईच अदर्स एनिमी फोर्सेस। Eventually, Beowulf tore off Grendel's arm and mortally wounding him. तो इतने में क्या होता है? Because Beowulf was also so very strong person, he वो टोर ऑफ कर लेता है, उसके एक बाजू को उखाड़ फेंकता है, ग्रेंडल की बाजू का उखाड़ फेंकता है, और उस तरह से वो जख्मी हो जाता है। द ग्रेंडल रिट्रीट्स टू हिज लॉयर वेयर ही succumbs to his injuries and dies. इस तरह से वो अपना, जहाँ पे वो उसका ठिकाना था नियर द सी, वहां पे वापस चला जाता है। व्हाट हैपेंस? वहां पे उसकी अब वो अपनी जो इंजरी, जो जख्मी हुआ था, काफी स्ट्रांगली इंजर, काफी ज्यादा इंजर हो चुका था, तो अपनी वो वहां पे अपने आप को नहीं बचा पाया, एंड ही डाइज। सो Beowulf wins his first fight against the monster Grendel. So it was his first, his aim was achieved. उसका इंटेंशन जो थी, उसका एम, मकसद जो था, अचीव हो गया है। He hangs the huge arm with its terrible claws from across the beam of the king's seat. अब किंग जहाँ पे बैठते हैं, उसके जो सीट होती है, उसके साथ में ऊपर बीम के साथ क्या कर लेते हैं, इसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, Beowulf की विक्ट्री ग्रेंडल पे सेलिब्रेट करने के लिए उसका बाजू जो है, ग्रेंडल का तोड़ा हुआ, खड़ा हुआ बाजू, वहां पे उसको फिक्स कर लेते हैं।
किंग की सीट के साथ टू शो देयर विक्ट्री। हर्थागर अरेंजेस ए पार्टी इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। अब इसमें क्या होता है कि किंग हर्थागर जो है वो ही बिकम्स हैप्पी, ही इज हैप्पी विद बेवुल्फ एंड हिज फेलोज, उनसे काफी खुश है। और इसी खुशी में वो क्या करता है, इनको सेलिब्रेट करने के लिए इसकी विक्ट्री को, जीत को, फतेह को सेलिब्रेट करने के लिए वो वहां पे एक पार्टी अरेंज कर लेते हैं किंग हर्थागर। एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग, अब पार्टी चल ही रही होती है, व्हाट होता है, क्या होता है, तो नेक्स्ट अटैक शुरू हो जाता है। तो सेकंड, दिस इज द सेकंड बैटल, एंड द सेकंड बैटल द विक्ट्री और ग्रेंडल ब्रिंग्स टेम्परेरी रिलीफ टू हर्थागर। अब वो तो सोच रहे थे, दे वर एंजॉयिंग, दे वर सेलिब्रेटिंग, they have arranged a party कि अब हम विक्ट्री कर, बट इट वाज नॉट फाइनल, इट वाज टेम्परेरी relief to हर्थागर and his people, but their troubles are far from over. ग्रेंडेल्स मदर, व्हाट हैपेंस, उसकी नई मुसीबत क्या थी कि ग्रेंडेल्स मदर एनरेज्ड बाय हर सन्स डेथ, काफी गुस्से में है, गुस्से से पागल हो चुकी है अपने बेटे की मौत पे, सीक्स रिवेंज ऑन दो रिस्पॉन्सिबल। और एंड व्हाट उसका एम क्या है, शी सीक्स रिवेंज, वो बदला लेना चाहती है कि जिन्होंने उसके बेटे को मारा है। शी लॉन्चेस ए नॉक्टर्नल रेड ऑन हेरॉड। अब हेरॉड जो है जो वहां का मीड हाल था, उस पे वो बहुत शिद्दत से अटैक कर लेती है, ड्रैगिंग वन ऑफ हर्थागर्स मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर्स, एस्ट्री, जिसका नाम है एस्ट्री, एक बहुत ही इसका रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टेड एडवाइजर है किंग हर्थागर के। तो टू हर अंडर वाटर लाइफ, उसको अपने जहाँ पे उसका अंडर वाटर जहाँ पे रहती है वहां पे उसको ले जाती है। व्हेन ब्यूल्फ रीचेस द ग्रेंडल्स मोर, ग्रेंडल का जो मोर है जहाँ पे रहती है, ब्यूल्फ जब पीछा करते वहां पे पहुंचते हैं, ही फाइंड्स द हेड ऑफ एस्ट्री। तो व्हाट हैपेंस कि एस्ट्री को बेचारे को मार लिया दिया होता तब तक, किसने, ग्रेंडल की मदर ने, जो कि एस्ट्री कौन था, इन ओल्ड दानिश वॉरियर एंड एडवाइजर देयर। नो व्हाट हैपेंस, Beowulf he determined to avenge the latest attack, and जो लेटेस्ट अभी अटैक हुआ था जो कि ग्रेंडल की मदर ने किया था, उस पे उसका बदला लेने की अब फिर से डिटरमिनेशन है इसकी। Beowulf sets out to confront Grendel's mother in her watery domain with the aid of a magical sword, and what happens, जब उस watery domain में वहां पे इनकी फाइट चल रही होती है, तो he finds a magical sword and takes its help. Beowulf descends into the depth of the mere and engages in a titanic struggle with the vengeful she monster. तो she monster के साथ इसके काफी टाइटैनिक वहां पे फायरस बैटल चल रहा था होता है। After a fierce battle, Beowulf emerges victorious. So in the second battle, to Beowulf remains victorious. He emerges victorious, decapitating ग्रेंडल्स मदर एंड रिटर्निंग ट्रायम्फेंट टू हेरोड। ग्रेंडल की मदर को भी वो मार देते हैं वहां पे और हेरोड में वापस आ जाते हैं। न्यूज ऑफ Beowulf's the news of Beowulf's exploits spreads far and wide। काफी दूर दराज तक, दूर दूर तक ये न्यूज पर चली जाती है ब्यूल्फ की जो वहां पे बहादुरी है, जो उसने वहां पे काम किए हैं, अर्निंग हिम फेम एंड एक्लेम थ्रू आउट द लैंड। ही इज हेल्ड एज ए हीरो, उसको तारीफ की जा रही है हर जगह पे, उसको हीरो माना जाता है पूरा हर जगह पे। एंड शोड हिम विद रिच रिवार्ड्स बाय हर्थागर एंड हिज ग्रेटफुल सब्जेक्ट्स। तो किंग हर्थागर और उसके सब्जेक्ट्स जो हैं, उसके वहां के रहने वाले जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, कंट्रीमैन जो है, इसको काफी अच्छी तरह से रिवार्ड करते हैं, इनाम देते हैं। नो कम द थर्ड बैटल। What happens here when the two battles were fought? लोगों को लगा कि शायद अब आराम होगा या ब्यूल, बट ब्यूल्स जर्नी इज फार फ्रॉम आवर, लेकिन उसकी आवर से खत्म होने से अब जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। फार ही इज
destined to face one final challenge। इसके बाद एक और इसको चैलेंज मिलने वाली जो कि फाइनल थी फिलहाल इसकी हिस्ट्री में, ए fearsome fire dragon that threatens his own homeland। अब उसका अपना होमलैंड कहाँ पे है, गीट लैंड है उसका। तो गीट लैंड में व्हाट हैपेंस, वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो क्या प्रॉब्लम होती है, वंडर अपॉन ए एन्चॉन्ट केव ऑफ द फायर ड्रैगन टेक्स ए जीवल्ड कप अवे। एक जीवल्ड का कप, एक जीवल सोने जुहारात का वहां पे कप जो होता है, एक वंडर जो है उस फायर ड्रैगन के केव से उठा ले जाता है, उसको चुरा लेता है। एंड ही इन ए फ्राइटफुल रैग डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग विद हिज फायर। और ड्रैगन जो फायर ड्रैगन है पूरा आग निकालता है वो, तो पूरी तरह से उस इलाके में उस गीक में एक तबाही मचा रखी उसने अपनी फायर से। तो सो व्हाट हैपन, एक फिर सम वहां पे एटमॉस्फेयर बन जाता है। इन द ट्विलिट ऑफ हिज लाइफ, चूंकि अब ब्यूल्फ जो है अब उनकी उम्र बढ़ चुकी है, बट जज्बा अभी है। इन द ट्विलिट ऑफ हिज लाइफ बीवुल्फ टेक्स अप आर्म्स, फिर भी हथियार उठा लेते हैं अपनी उस एज में भी, वंस मोर टू कन्फ्रंट द फायर ड्रैगन। उस फायर ड्रैगन से भी कन्फ्रंट करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड प्रोटेक्ट हिज पीपल, और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उससे बचाना चाहते हैं वीक लैंड के पीपल्स को। इन ए क्लाइमेटिक बैटल, इन ए क्लाइमेटिक बैटल बीवुल्फ एंड द ड्रैगन क्लैश इन ए ब्लेज ऑफ फायर एंड फ्यूरी। तो काफी एक ब्लेज और फायरी वहां पे उनका बैटल रहती है। बीवुल्फ इज हेल्प्ड बाय वन ऑफ हिज कंपेनियंस विगल्फ। अब एक विगल्फ इसका एक कंपेनियन होता है वहां पे, जो बीवुल्फ के साथ वहां पे इसकी हेल्प का सपोर्ट करता है बैटल में। डिस्पाइट हिज एडवांस्ड एज बीवुल्फ फाइट्स वैलेंटली एंड द ड्रैगन इज स्लेन। अपनी एज, इतनी एज होते हुए भी फिर भी बीवुल्फ जो है बहादुरी से लड़ते हैं, फाइट वायलेंटली उसके साथ लड़ते हैं और ड्रैगन को स्ले कर ले लेते हैं, उसको मार देते, काट लेते हैं उसको। बट ही इज मॉर्टली वाउंडेड इन द स्ट्रगल एज द फायर ऑफ द ड्रैगन रीच हिज लंग्स। अब ड्रैगन के साथ फाइट करते करते, क्योंकि एक फायर ड्रैगन है, आग आग, आग उगलता है अपने मुंह से, तो इसी में क्या होता कि ड्यूरिंग द दिस बैटल, ड्यूरिंग स्ट्रगल, ड्रैगन की फायर जो है बीवुल्फ पे भी असर करती है, उसके लंग्स तक ये पहुंच जा असर कर देती है। व्हेन बीवुल्फ फील्स दैट हिज एंड इज नियर, अब वो समझ लेता कि अब मेरा आखिरी समय आने वाला, मेरा अंत होने वाला है। ही सेंड्स विगोल्फ इनटू द फाड्रेक्स केव, तो वो फाड्रेक्स के केव में भेजता अपने उस साथी को, विगल्फ को, जिसने इसकी सपोर्ट करा वहां पे, तो वहां पे भेजता है। ही फाइंड्स इट फुल ऑफ रेयर ट्रेजर एंड ए गोल्डन वेनर, और वहां पे देखता कि पूरी तरह से वो भरा हुआ है ट्रेजर से, हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से, कीमती चीजों से, और एक गोल्डन बैनर भी है। हिज माइंड इज फुल ऑफ ग्रीफ फॉर द डाइंग ऑफ हिज चीफ, बिकॉज अब उसका मन जो है, विगल्फ जो है कंपेनियन जो बीवुल्फ का है, उसका मन जो है अंदर से तरस रहा है, अफसोस मना रहा है, क्योंकि उसका दोस्त जो, उसका साथी जो है, उसका चीफ जो है, वो ही वॉज डाइंग, बीवुल्फ वॉज डाइंग। When they came out, they found him dead and the huge dragon dead on the sand beside him। जब ये बाहर आता है विगल्फ, जब उस केव से बाहर आता है, तो what he saw there, वो देखता है कि उसका साथी जो है they found him dead and huge dragon dead on the sand beside him। उसने देखा कि उसका साथी जो भी डेड है और ड्रैगन भी उसके साथ मारा पड़ा है। बट एक्चुअली होता क्या है कि बीवुल्फ अभी मरा तो नहीं है, बेहोश है। एज बीवुल्फ लाइज डाइंग, वो डाइंग, अभी उसके मौत हो ही रही है, मरने वाला है। ही bequeaths his kingdom to a trusted successor and reflects on its life's accomplishments। With his dying breath, he instructs his followers to erect a towering monument in his honor। वो अपने एक ट्रस्टेड सक्सेसर को वहां पे किंगडम का भार सौंपता है, और अपने मरते मरते क्या तो वो चाहता है उनसे कि मेरी विश है कि मेरी याद में एक
इरेक्ट किया जाए, टाउरी मॉन्यूमेंट इरेक्ट किया जाए, ए फिटिंग ट्राइब्यूट टू हिज लीजेंडरी डीड्स, जो कि उसकी एक लीजेंड की तरह उसने जो काम किया था, जो उसको दर्शाए. सो बीवुल्फ्स डेथ मार्क्स द एंड ऑफ एरा. बीवुल्फ्स डेथ मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा. इस तरह से एक एरा जो है, एक जमाना जो है बीत जाता है उसकी मौत के साथ साथ, बट हिज लिगेसी, लेकिन उसकी लिगेसी जो है लिव्स ऑन इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ दोज हु हियर हिज टेल. जो भी उसकी टेल सुनता है, कहानियां सुनता है, उसके हमेशा दिल में, मन में, दिमाग में उसकी एक कहानी रहती है व्यूल्फ की, उसकी ब्रेवरी की, या उसका जो सेल्फलेस उसने काम किया था बगैर किसी अपने स्वार्थ के, इंटरेस्ट के. हिज करेज, स्ट्रेंथ and unwavering commitment to justice serve as an enduring inspiration to all who seek to follow in his footsteps. वो एक इंस्पायरेशन रही उन लोगों के लिए जो भी इस तरह से काम करना चाहते हैं, और उस ब्यूल को देख के बहुत सारे लोग उनके फुटस्टेप्स पे चलना चाहते हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं. एंड thus the epic of Beowulf stands as a testament to the enduring power of the human spirit and the timeless appeal of the heroic ideal. No, friends, it is the climax of the story now, and climax in the films, the ending part of a story, a play, a film, a movie. So what happens? Climax of the story of the poem Beowulf here, एक मैग्निफिशेंट एंडिंग होती है. एक एंड होता है एक ऐसे इंसान का, और बहुत ही मैग्निफिशेंट तरीके से. द अनसेल्फिश हीरोइज्म ऑफ बीवुल्फ, और बीवुल्फ की जो है अनसेल्फिश, उसने जो भी काम किया अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए किया. तो एक अनसेल्फिश हीरोइज्म बीवुल्फ की उसमें देखने को मिलती है हमें. जेनरस ग्रीफ होता है, पूरी तरह से हर कोई मातम मना रहा किसके लिए, एक अच्छे इंसान के लिए, एक बहुत ही बहादुर, जो कि हर किसी के लिए एक पैरेंटल हाथ रखने वाला आदमी था, जिसने हर किसी को बचाने की कोशिश की. तो सो व्हाट हैपन, ए ब्रेव मैन्स डेथ, एक बहादुर आदमी की मौत इसमें क्लाइमेक्स में हमें देखने को मिलती है. आफ्टरवर्ड बीवुल्फ इज रिचुअली क्रिएटेड ऑन ए ग्रेट फायर इन गीटलैंड. चूंकि गीटलैंड में, ये तीसरी बैटल गीटलैंड में होती है, वापस अपने देश में चला जाता है. तो गीटलैंड में क्या होता है कि उसको क्रीमेट किया जाता है एक ग्रेट फायर पे, एंड ए बैरो विजिबल फ्रॉम द सी इज बिल्ट इन हिज ऑनर एंड मेमोरी. उसकी याद में, उसकी इज्जत में एक बहुत ही विजिबल टावर एक बनाया जाता है, उसकी याद में बनाया जाता है. No, friends, we will discuss about the themes. The themes of the poem are the main theme of the poem is the conflict between good and evil, most obviously exemplified by the physical conflict between Beowulf and the grendel. Here, good symbolize, Beowulf symbolizes good and grendel as the evil. This is the main theme of this poem. Next, however, good and evil are also presented as a dual qualities present in everyone. The poem also makes clear our need for a code of ethics, which allows members of society to relate to one another with understanding and trust. Now, friends, some major themes of the poem are heroic code, good against evil, loyalty, bravery, revenge, generosity, hospitality, denying defeat, death, and ruler's obligation. These are the major themes of this poem. Now, friends, we will discuss about the form and meter of the poem. As the poem is
set in Old English period. The Old English poem Beowulf is different from modern poetry. Anglo-Saxon poets typically used alliterative verses. Alliterative mean same letter से शुरू होने वाले, same consonant letter से शुरू होने वाले words, sounds, sounding words. A form of verse in which the first half of the line, the A verse, जिसको हम first half of the line A verse कहते हैं, is linked to the second half. B verse के साथ वो linked है. किस तरह से? Through similarity in initial sounds. जैसे मैंने पहले कहा कि alliterative sound में क्या होता है? Alliterations को कहते हैं हम. इसमें हमारे जो वर्ड्स शुरू होते हैं किसी भी सेंटेंस में, दे स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट बट सेम कॉन्सोनेंट सोनिंग वर्ड्स. सो फ्रेंड्स, देयर you have it, all the tales overview of the Anglo-Saxon great literary epic poem Beowulf. Thank you for joining me today. If you have any questions, please feel free to ask me, and I also request you people to please support me by sharing this video, subscribing to my YouTube channel, commenting there, by liking my video channel, my videos, and share with your friends so that the video reaches to everyone who needs it. So friends, because I am recording the videos, preparing the videos in a chronological order, अभी हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड चल रहा है. इसके जो भी थोड़ा सा लिटरेचर है उसको हम पढ़ लेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नॉर्मन इंग्लिश, जहां से अब हमारे पास एक मेन ऑथर चासर है या वो और भी उनके कंटेम्प्रेरी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं. तो प्लीज, इफ यू लाइक दिस, so please I ask you to please subscribe my channel, ask other people to subscribe my channel, comment there and share my videos. So thank you for joining me. See you in the next video.